Okay guys, welcome. So let's start with the session today. तो कल अगर आपको याद होगा, कल हमने basically we talked about कि how to add vectors and that too in the component form, right? उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे concepts देखे, बहुत सारे questions बनाए, कैसे उनको add करना है वो हमने देखा, ठीक है? तो basically हम we will go to the last part of the vector, which is basically product of vectors. तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में. तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी हुई थी. तो वी विल टॉक टुडे अबाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन डिटेल. तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ था, व्हाट वी हैव स्टडीड. यस, गुड. सो लिसन, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ था, व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इज स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब what is the meaning of this? Suppose I will explain you that what we did is that we were having a vector, suppose a vector, and we used to multiply this with some constant, suppose b, and b was a number, ठीक है, with or without units. प्लीज इस डिस्कशन को अच्छे से समझिएगा. with or without units मतलब suppose we are having a vector a vector and suppose we represented it in the form of arrow like this. This is our a vector. Suppose we multiply a vector with half. So if we multiply a vector with half, we get another vector which will be something like this. This is half of a vector. But here half is a scalar, means it is a mere number. It may or may not have units, that's a different story, but it will be a scalar. मतलब हम scalar quantities इसको multiply करेंगे. तो जब हम scalar quantities इसको multiply करेंगे, तो scalar आपको पता है mass is also a scalar quantity, time is also a scalar quantity, that we understand, right? Why I said number with or without units, I want to explain you this. Suppose what we did is that we multiply acceleration. I will write it completely. You understand acceleration. हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. If we multiply acceleration with time, what we need to understand is that acceleration is a vector quantity. It's a vector quantity. And if we multiply this vector with time, time is a scalar quantity. But time does come with a unit. It is not without unit. It is having a unit of seconds, minutes, hours, whatever it is, right? So agar hum acceleration, which is, suppose if I keep the unit of acceleration is meter per second square. I hope all of you understand this, that unit of acceleration is meter per second square. इसको अगर मैं second से multiply कर दूं, which is the unit of time. So after multiplying this, we will get something which is having a unit of meter per second. मतलब ये basically आपको velocity की unit दी जाएगी. You will get velocity. I hope you understood this. So you will get what? You will get velocity. When you multiply meter per second square with seconds, you will get what? You will get velocity. तो concept क्या है सुनिएगा. Concept ये है कि जब हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के कारण द नेचर ऑफ वेक्टर मीन्स उस वेक्टर की यूनिट, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर है, suppose it's a velocity vector and I multiply it with 5. It's a plain number. So my velocity vector will become 5 times. It will remain a velocity vector, but it will become 5 times enhanced or exemplified or larger, right? Similarly, अगर मैं velocity vector को half से multiply करता हूँ, then it will remain a velocity vector only, means its unit will be meter per second, but it will be half times, इसकी जो magnitude होगी वो half हो जाएगी as compared to the initial velocity vector that we were having. लेकिन अगर हम कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो स्केलर्स है लेकिन उनकी कुछ यूनिट्स है, तो उस केस में तुम्हें दिखेगा कि जब वेक्टर को, विच इज एक्सेलरेशन, उसको मैंने
टाइम से मल्टीप्लाई किया विच इज अ स्केलर, सो वी गॉट वेलोसिटी। मींस वेक्टर की नेचर बदल जाती है, वो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी वेक्टर बदल में चेंज हो गई है, राइट। बट इस केस में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी प्लेन नंबर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और दूसरी स्केलर होती है। तो जब एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसको जब हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो साइन आएगी वो मल्टीप्लिकेशन साइन आएगी। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन दैट वी ऑल नो एंड विच वी ऑल अंडरस्टैंड। दिस इज द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो हम सबको समझ में आता है। व्हेन आई से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मींस हमने जो अब तक जो मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है स्टैंडर्ड, अपने सेकेंडरी स्कूल में, वही मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन क्या आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। लेकिन ये चीज को आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मैं मल्टीप्लिकेशन सिर्फ पॉजिटिव नंबर से ना करके नेगेटिव नंबर से भी कर सकता हूँ। तो नेगेटिव नंबर से करूंगा तो वेक्टर का सेंस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड इट, राइट? ये मैंने ऑलरेडी बताया था, ऐसा क्विक रिकैप में कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए वेक्टर था और मैंने उसे मल्टीप्लाई किया, सपोज आई मल्टीप्लाई इट विथ -12, आई मेक अनदर वेक्टर -12 ए वेक्टर। तो -12 जब मैंने किया तो यू विल गेट द वेक्टर समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर -12 ए वेक्टर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि ए वेक्टर की जो सेंस थी, सेंस मतलब टेल से हेड की डायरेक्शन, वो सेंस भी चेंज हो गई। उसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हुई, प्लस प्लस उसकी सेंस भी चेंज हुई है, राइट? सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। तो उसकी सेंस भी चेंज हुई है, एंड सेंस इज व्हाट? सेंस इज अपोजिट नाउ, मींस उसकी टेल टू हेड की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे बेसिकली ऐसे मल्टीप्लिकेशन की जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली जब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, व्हेन वी आर सेइंग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो हमारा सिलेबस के अंदर हमें जो समझना है वो, हम जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब हमें दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। दो वेक्टर्स होंगे और उनकी मल्टीप्लिकेशन मुझे करनी है। ये नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों वेक्टर के सेम यूनिट्स होने चाहिए। सेम यूनिट्स इज नॉट नेसेसरी। Is not necessary. This is very important. They may be having different units. That's okay. Means हमने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, फोर्स को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, इनकी यूनिट्स अलग हो, उनको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो अगर वेक्टर्स हैं तो बेसिकली जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब जो कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लिकेशन हम जब दो वेक्टर का करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो कॉन्सेप्ट ये है कि इनके बीच में दो डिफरेंट साइंस आती है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। इधर आएगी डॉट या फिर आएगी क्रॉस। तो जब ये डॉट आता है, दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट, और जब ये क्रॉस आता है, दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज द बेसिक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी समझना ये है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। बिकॉज नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, हम ऐसे भी लिखते थे, आपको किताबों में मिल जाएगा 3.4 या 3 × 4। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हम जनरली स्केलर्स का ही मल्टीप्लिकेशन करते थे। बट यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दिस वाज नॉर्मल जो हमने अभी तक सेकेंडरी एजुकेशन में अपनी पढ़ी हुई, दिस वाज नॉर्मल, राइट? जब हम दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके बीच में डॉट और क्रॉस आ रहा है, जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके बीच में डॉट और क्रॉस आ रहा है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड दीज आर एंटायरली डिफरेंट, these are entirely different from the normal multiplication that we know of, right? क्या ये वाला स्लाइड आपको एकदम 100% क्लियर है? क्या आपको समझ में आई मैंने क्या बोलने की कोशिश की है? तो यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है? समझिए इस चीज को, यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन,
राइट? थैंक यू। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, मैं एक नया स्लाइड लेता हूं आपके लिए। अब ध्यान से सुनना, तो आपको एक बात समझ में आएगी और अच्छे से, कि सपोज वी आर हैविंग अ वेक्टर, let me draw the coordinate system for you. Suppose this is my coordinate system and I am having a vector which is like this. Suppose I am taking this as a vector. आपको vector का representation पता है. So this is my coordinate system what I talked about. ये मेरा coordinate system है xy and I am talking about a vector. ठीक है, ये वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया, आपको पता है इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, बिकॉज पोजीशन वेक्टर की टेल हमेशा कहाँ पे होती है, ओरिजिन पे होती है। तो ओरिजिन पे टेल है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस वेक्टर के मैं कंपोनेंट्स कर रहा हूँ। इस वेक्टर के कंपोनेंट्स करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके हेड से आपको एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस वेक्टर को बोलता हूँ सपोज आर वेक्टर एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो मैं इसको ओ नाम देता हूँ, इसको ए नाम देता हूँ एंड आई हैव ड्रॉप अ परपेंडिकुलर बी। तो ये जो ओ बी है, ध्यान से देखिएगा, this AOB will be written as r cos theta and this AB this is equal to r sin theta। ये आपको समझ में आ रही है sin theta cos theta की अंडरस्टैंडिंग से। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स लिए, एक कंपोनेंट लिया इस तरफ which is r cos theta और एक कंपोनेंट लिया इस तरफ। आपको पता है मैं पैरेलल मूवमेंट से इसको r sin theta जो यहाँ पे है बेसिकली, इसको मैं एक्सिस पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसको मैंने आर साइन थीटा लिखा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो वी डिड व्हाट, वी टुक द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा। तो सपोज मैं आपको एक केस देता हूँ कि सपोज वी वर हैविंग, ध्यान से सुनना, सपोज हमारे पास इस तरीके से हम कंपोनेंट ले सकते हैं। तो मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, सपोज वी आर हैविंग दिस एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, and suppose we are having one vector which is along this direction, suppose we call it as a vector, ठीक है, and suppose we are having another vector which is like this, something b vector। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इनके बीच का ये जो वर्टिकल, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बी वेक्टर, वो थीटा है। तो हम क्या करेंगे, हम बी वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और बी वेक्टर का कंपोनेंट ले लेंगे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इट विल बी व्हाट, इट विल बी, यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इट विल बी व्हाट, इट विल बी बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड वाइज। एंड व्हाट विल बी दिस पर्टिकुलर वेक्टर जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इट विल बी बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और ये एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आप सबको पता है आई हैव टू राइट इट लाइक बी साइन थीटा जे कैप, और जो हॉरिजॉन्टल में है उसको हमें लिखना पड़ेगा बी कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ जो आपकी यूनिट वेक्टर होती है वो आई कैप होती है और वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप होती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, अभी फिलहाल सुनना, इसको तुमको रियलाइजेशन होगा बाद में, बिकॉज अभी फिलहाल हमें समझना है कि हमें डॉट प्रोडक्ट कैसे करना होता है, डॉट प्रोडक्ट क्यों करते हैं, उसकी समझ जब आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज देखोगे तब आपको समझ में आएगी। सो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो वेक्टर मेरा एक्स एक्सिस की तरफ था दैट इज द ए वेक्टर, और जो मैंने वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर का एक्स एक्सिस की तरफ लिया, इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो वेक्टर मैंने बी वेक्टर का कंपोनेंट लिया अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच इज बी cos थीटा आई कैप, जो मैंने येलो कलर से दिखाया हुआ है एरो से, और जो ऑलरेडी एक्स एक्सिस की तरफ का वेक्टर था ए वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी cos थीटा आई कैप, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, इट विल बी डॉट प्रोडक्ट। और जो मैंने कंपोनेंट लिया है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस की तरफ लिया है, जो कि बी साइन थीटा जे कैप है, ये वाला, और ए वेक्टर के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगी दैट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिलहाल इसे रजिस्टर करो अपने दिमाग में, इसकी समझ आपको विथ टाइम होगी। तो मैंने क्या बोला है
मैंने ये बोला है कि आपके पास सपोज एक वेक्टर थी बी वेक्टर, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ और एक बार डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज दिस इज द ए वेक्टर दैट आई एम हैविंग, and suppose I am having another vector which is the b vector which is like this। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस b वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट करूंगा। एक कंपोनेंट जो होगी along a vector and suppose I call this as b cos theta, ठीक है, into a cap। a cap क्यों लिखा आपको समझ में आ जाएगी, अभी आप थोड़ी सी अपनी अकल लगाओ, तब तक कल आपको बताया गया था। और ये वाली जो कंपोनेंट है, ये वाली कंपोनेंट है b sin theta into यू नो दिस इज बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, और इसकी कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट आप इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो उसे हम निकालना पड़ेगा, राइट। इसको मैं कुछ एक नाम दे दे रहा हूँ, एन कैप, इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि जो बी कॉस थीटा है और जो ए है, इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? वी हैव ओनली डॉट प्रोडक्ट दैट इज पॉसिबल। और अगर मैं ए वेक्टर और बी साइन थीटा एन कैप के बारे में सोचूं, तो इनके बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? इनके बीच में होगा क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट होने के लिए ये जरूरी है कि एक कोई भी वेक्टर और उसी की तरफ जो दूसरा वेक्टर आ रहा है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, और परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होंगे उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आपको क्या समझना है इस डिस्कशन से, इस पेज से, कि अगर दो वेक्टर एक ही तरफ हो तो उनके बीच में कौन सा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है? उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। और अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल होता है? उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कब होगी? जब दो वेक्टर एक ही तरफ होंगे तब उनका डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? उल्टा ना कर देना, ये समझना बहुत जरूरी है, बेसिक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इतना जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। दिस समथिंग व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आइए आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए, मैंने एक फिर से एक नया स्लाइड आपके लिए लिया है। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे से। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स नाउ टॉक अबाउट डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को समझने का तरीका क्या होता है? अगेन लेट मी टेल यू, ध्यान से सुनना। सपोज we are having a vector and we are having another vector as suppose b vector। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि दोनों वेक्टर को आप टेल टू टेल रख रहे हो। ठीक है, इसी ऑर्डर में आप प्रोडक्ट लो, बिकॉज टेल टू टेल रखते हो तभी आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर मिलता है। सपोज इफ आई से दैट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा, सपोज इफ आई से दैट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा, तो अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा है, ध्यान से सुनना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, तो उससे मुझे इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक मिलेगा अलोंग द ए वेक्टर विच उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी बी कॉस थीटा। मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, बहुत संभल के मैं बोल रहा हूँ, बी कॉस थीटा, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, एंड दिस इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी बी साइन थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है, समझिएगा अभी ध्यान से, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, जब मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम व्हिच इज थीटा। ठीक है, फिर से सुनो, डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मैं करता हूं, which will be a into b into cos theta, where a is the magnitude of a vector, b is the magnitude of b vector, and theta is the angle between a vector and b vector।
सो थीटा ऑलरेडी यहाँ पे एंगल मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको समझ में आ रहा है, ये थीटा विच इज द एंगल between two vectors, and we know that how to find out the angle between two vectors. Angle between two vectors can be found when we are having the tail to tail arranged in one place or head to head arranged at one place. तो generally tail to tail ही रखो, head to head तो conceptual clarity के लिए है, but generally आपको एक चीज कंसिडर करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है? तो आप tail to tail ही generally कर सकते हैं, ठीक है? गुड। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट का पहला फॉर्मूला आपने सीखा, इट इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अगर हम इस फॉर्मूला को अच्छे से एनालाइज करें तो हमें एक बात समझ में आती है, ध्यान सुनना। यस, a एंड b आर द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। आपको मैंने बताया हुआ ये बात कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, a वेक्टर को दो डंडों के बीच में रखेंगे या फिर हम a वेक्टर के ऊपर का एरो हटा देंगे, a लिखेंगे, दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन लिखने का तरीका क्या होता है? a कैप, राइट? ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर को जब मैंने a इंटू बी इंटू कॉस थीटा लिखा है, तो यहाँ पे a और b क्या है? उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं। किन वेक्टर के? a वेक्टर और b वेक्टर, जिनके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, a b कॉस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, a को वैसे ही रखो, ठीक है? और जो b cos थीटा है, क्या आप उसे b पैरेलल लिख सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b पैरेलल? ये एक नया टर्म है। b पैरेलल इंडिकेट्स द कंपोनेंट ऑफ b which is along a वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई है? b पैरेलल रिप्रेजेंट्स कंपोनेंट ऑफ b which is along a वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो कंपोनेंट ऑफ b which is along a वेक्टर, that is something which you need to understand। क्या क्लैरिटी आई है? क्या क्लियर है? गुड। सो a into b parallel which is the component of b which is along a vector, component of b which is along a vector, so that is a into b parallel। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लो, आपको समझ में आएगी बात, ध्यान सुनना। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे, पहले मैं इसको लिखने का तरीका बताता हूँ। a cos थीटा इंटू बी, इसको ऐसे भी लिख सकते थे तुम। जब तुमने a इंटू बी पैरेलल लिखा है, तो तुमने इसको कैसे अरेंज किया? तुमने इसको अरेंज किया, a को सेपरेट रखा, बाहर रखा, एंड b cos थीटा लिखा यहाँ पे। तो a इंटू बी cos थीटा किया तुमने। तो b cos थीटा को तुमने क्या बोला? b पैरेलल। सो दिस b cos थीटा इज b पैरेलल, मतलब b वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू a वेक्टर है या अलोंग a वेक्टर, राइट? तो a इंटू बी पैरेलल लिखा। लेकिन क्या तुम इसे a cos थीटा इंटू बी भी लिख सकते हो? तो जब तुम a cos थीटा इंटू बी लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ समझेंगे। इसके लिए मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज आई एम हैविंग दिस एज द b वेक्टर, मैं वही कलर्स यूज कर रहा हूँ, एंड सपोज आई एम हैविंग दिस एज अ a वेक्टर। तो अब मैं क्या करूंगा, ये थीटा है दोनों के बीच का एंगल। अब मैं a वेक्टर का एक कंपोनेंट लूंगा b वेक्टर की तरफ। तो a वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा b वेक्टर की तरफ, वो मैं लिखूंगा a पैरेलल which will be like a cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली आपको a वेक्टर के हेड से, ध्यान समझना, आपको a वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर खींचनी पड़ेगी, इसके ऊपर, b वेक्टर के ऊपर। तो फिर ये जो a पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ब्लैक कलर से, अभी जिसके ऊपर ग्रीन एरो बना रहा हूँ, क्या वो वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा। तो a cos थीटा इंटू b जब आप लिखोगे, क्या इस चीज को आप लिख सकते हो a पैरेलल इंटू b। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है, इस वीडियो को 2 बार देखना, प्लीज 2 बार देखो, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है। किसी को एक बार समझ आता है, किसी को 2 बार देखने पे समझ आता है, तो ये सब नॉर्मल बातें हैं। आपको ये सब चीजें अभी समझ में आने लगेंगी जैसे तुम 11th-12th में आए हुए, ठीक है? तो मैंने क्या किया समझो, मैंने a इंटू बी कॉस थीटा, अगर तुम देखोगे मैंने सिर्फ a इंटू बी कॉस थीटा को मैनिपुलेट किया। मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूँ a इंटू बी कॉस थीटा,
can write it in two different ways. Either you can write it as a cos theta into b, or you can write it as a into b cos theta. If you write it as a cos theta into b, this will be a parallel into b, and if you have written it a into b cos theta, this will be a into b parallel. Did you understand this? कुछ नहीं है, इसको इंटरप्रेट करने का तरीका है. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है सबको? क्या आपको समझ में आई है मैंने जो बोला? क्लैरिटी है? सब लोग देखें, कोई भी दिक्कत है तो यू कैन रेज योर पॉइंट. ठीक है. आर्यमान सारडा नहीं समझा. क्या नहीं समझा भाई? सर व्हाट इफ द सेंस इज डिफरेंट? सेंस इज डिफरेंट तो आपको बताया गया है ना, आपको हमेशा वेक्टर्स को वैसे ही रखने हैं, और वेक्टर के बीच का एंगल का जब बात हो रहा है, क्लैरिटी रखो प्लीज. वेक्टर के बीच का जब एंगल हो रहा है ना, तो सेंस मतलब क्या? देखो अभी देखो, फॉर एग्जांपल तुमने जब ये सवाल पूछा तो मैं क्लैरिटी देता हूँ. सपोज एक वेक्टर आपकी ऐसी है और दूसरी वेक्टर सपोज आपकी ऐसी है. अब ये वेक्टर, सबसे पहले तो ये वेक्टर हेड टू टेल में अरेंज ही नहीं है, टेल टू टेल में अरेंज नहीं है. सबसे पहले तो आपको वो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी वेक्टर्स. तो आपको पता है कि आप पैरेलल मूवमेंट दे सकते हो, तो पैरेलल मूवमेंट दे के जब आप ये पैरेलल मूवमेंट दोगे तो आपको ए वेक्टर इधर नजर आएगी, टेल इसका इधर होगा, और बी को पैरेलल मूवमेंट देने के बाद आप इसके ऊपर लाके रख सकते हो. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो you will, after giving parallel movement, you will get this thing. And what will be the angle between the two vectors? Now there are two angles, this and this. Which one do you think will be the angle between the two vectors? That with marked with red or green? Red. ठीक है. तो सेंस ऑफ टू वेक्टर्स डिफरेंट है, तो आपको सेंस ऑफ टू वेक्टर्स डिफरेंट है, तो ये सवाल आपके दिमाग में आया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है. आपको सबसे पहले उनको टेल टू टेल रखना है. समझ में आ रहा है ना? ओके, टेल टू टेल पहले रखो और उसके बाद एंगल निकालो, वो एंगल से आप यूज करो उसे. ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इसको इस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो. क्या क्लैरिटी है ये? इस पॉइंट को अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप वीडियो में एक बार फिर से देख सकते हैं. ठीक है. आइए, सो वी अंडरस्टूड दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा. इसको लिखने के दो तरीके, ए पैरेलल बी और ए इंटू बी पैरेलल. तो जब मैं ए पैरेलल बी, आर्यमान you are unnecessarily confusing yourself. Yes, you can multiply any two vectors. उनके बीच में एक एंगल होना चाहिए थीटा. सेंस अलग हो गया तो थीटा बदल जाएगा भाई. समझ में आ रहा है? You can multiply any two vectors with any angle between them. तो जब मैं बोलूं कोई भी वेक्टर के बीच का एंगल, any angle between them, that angle has to lie between. कौन बताएगा? That angle has to lie between. दो वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है. दैट एंगल, कोई भी एंगल जो है, दैट हैज टू लाई बिटवीन 0 to 180 डिग्री. वेरी गुड संपन्न, वेरी गुड सिमरन, क्लैरिटी है. गुड गुड. तो आप कोई भी दो वेक्टर के लिए मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. प्लीज कंफ्यूज ना हो. ठीक है? कि ऐसा ही नहीं होगा कि एक्यूट एंगल में ही वेक्टर्स हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है. तो कभी भी अपने दिमाग में ऐसा चीज अगर आ रहा है तो ऐसा कभी मत लाने दो कि एक्यूट एंगल के लिए ही ये चीज एप्लीकेबल है, बिकॉज सर ने ऐसा डायग्राम बनाया था. तो मैंने उस चीज को यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ध्यान से देखो. ये डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ऑब्ट्यूज भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. क्या क्लैरिटी है ये? गुड. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैथमेटिकल मीनिंग है, व्हिच इज a into b into cos थीटा. क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड. अब देखो ध्यान से, इसको लिखते कैसे वो भी हमने देखा. अभी ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमने देखा क्या होता है क्या नहीं. a इंटू बी इंटू कॉस थीटा. उसको लिखने के दो तरीके देखे, a इंटू बी पैरेलल या a पैरेलल इंटू बी. ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब देखो, सपोज मैं आपको बोलूं कि हमने आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था. वी टॉक्ड अबाउट आई कैप, जे कैप, के कैप. दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली. राइट? तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से. सपोज मैं आपको बोलूं डू आई डॉट आई क्या हो जाएगा? I is the unit vector. तो I dot I का मैग्नीट्यूड 1 होगा, I का मैग्नीट्यूड 1 होगा into cos of angle between them. What is the angle between I vector and I vector? Is it 0 degree? तो will your answer be 1? Very good. तो I cap dot I cap will be 1. Similarly, J cap dot J cap and K cap dot K cap क्या all will be 1? अच्छा, ये I cap, J cap, K cap क्या थे?
ये आई कैप जे कैप के कैप थे, दे आर द यूनिट वेक्टर्स, इफ यू रिमेंबर they were the unit vectors or they are the unit vectors along x, y and z axis respectively. Yes or no? We understand, we understand they are the unit vectors along x, y and z axis respectively. So I dot I is equal to 1 into can you hear me now, guys? Guys, can you hear me now? Everyone, please respond. Yes, okay, fine, fine, fine. Let me share another whiteboard with you all. Okay, चलिए, sorry, चलिए. So you all are with me? Now listen to me. तो मैंने जो बोला कि I dot I, J dot J, K dot K, ये ऑलरेडी हमारा 1 हो चुका था. तो कोई बच्चा पूछ सकता है तो सर I dot J cap क्या होगा? I dot J cap करूं तो I का मैग्नीट्यूड 1 होता है, J cap का मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि दे आर यूनिट वेक्टर्स और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? I और J के बीच का एंगल इज इट 90 डिग्री? तो cos 90 डिग्री 0 होता है. इसका मतलब I dot I cap dot J cap is 0. Similarly, J cap dot K cap and K cap dot I cap all will be 0. So I dot I, J dot J, K dot K is 1. I dot J is 0, J dot K is 0 and K dot I is 0. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गुड. तो ये बेसिक बात आपको समझ में आई है. दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. डॉट प्रोडक्ट इज commutative and distributive. What is the meaning of it? We already have talked about these things previously. मैं आपको बता देता हूँ फिर से. सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर. a वेक्टर डॉट b वेक्टर will be same as b वेक्टर डॉट a वेक्टर. इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. a वेक्टर डॉट b वेक्टर will be same as b वेक्टर डॉट a वेक्टर. Are you understanding this? And listen to me. a vector dot b vector plus c vector will be same as a vector dot b vector plus a vector dot c vector. क्या मेरी बात समझ में आई है? So dot product is commutative and distributive. dot product दोनों है, commutative भी है और distributive भी है. That means a vector dot b vector is b vector dot a vector and a vector dot b vector plus c vector is a vector dot b vector plus a vector dot c vector. याद करो ये सब रूल्स आपने बेसिक ऑपरेशन से पहले किया हुआ है बहुत सारा, मतलब स्टैंडर्ड 7th 8th में आपने ऐसे बहुत सारे रूल्स देखे होंगे. ठीक है. सो डॉट प्रोडक्ट इज बोथ कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. चलो ध्यान से देखो अभी. फाइन. नाउ लिसन टू मी. ठीक है. हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा क्या? Good. When you ask this question, let me ask you. Suppose if I tell you this, can you write it as a vector dot b vector minus a vector dot c vector? Yes, this is also valid. So this is distributive over both addition and subtraction. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो dot product is commutative as well as distributive. Commutative मतलब dot product है, तो ओवर एडिशन मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करूं या बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर करूं, दोनों में कर सकता हूं और दोनों सही है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों सही है. ठीक है, आई होप यू गॉट दिस. ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से. अब सवाल ये है, अब सवाल क्या है, सुनना ध्यान से. अब सवाल क्या है कि सपोज ध्यान से सुनना. देखो, तो डॉट प्रोडक्ट का मेजर यूटिलिटी क्या है? डॉट प्रोडक्ट का मेजर यूटिलिटी है, द मेजर यूटिलिटी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जो आपको हमेशा याद रखना है.
डॉट प्रोडक्ट का मेजर यूटिलिटी है टू फाइंड टू फाइंड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। व्हाट इज द मेजर यूटिलिटी ऑफ डॉट प्रोडक्ट? इट इज टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ये बहुत जरूरी है। दो नॉन जीरो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि आपने अभी फॉर्मूला देखा था, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपने फॉर्मूला देखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि कॉस थीटा विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आप करोगे तो आपको ये मैं अभी सिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं आप इसे। डिवाइडेड बाय ए बी, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो cos theta will give you what? It will give you the angle between any two vectors। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो लेट्स ट्राई टू सी कि डॉट प्रोडक्ट के हमने जो भी चीज अभी पढ़ी है इसका हम लोग अभी यूज करेंगे कुछ सवालों में, सो दैट वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। उससे पहले एक और बेसिक बात, मान लीजिए मैं आपको बोलूं, मैंने आपको बोला है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग x, y एंड z। मतलब i कैप, j कैप और k कैप के टर्म्स में मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सपोज इफ आई राइट a वेक्टर एज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, and suppose if I write, let me generalize it. Why to write it with this value? Let me generalize it for you. Okay. Suppose if I write a vector as ax I cap plus ay j cap plus az k cap. Suppose I write a vector as this, and suppose if I am having another vector b vector and I write b vector also in the component form, that is in terms of I cap, j cap and k cap, and suppose it is by j cap एंड बी जेड के कैप। अगर मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? ध्यान से सुनना, मैं ये पूरा चीज लिखता हूं आपके सामने सो दैट आपको एक बार पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आई होप यू गॉट दिस। जब मैं इसे डॉट प्रोडक्ट करूंगा व्हाट आई विल गेट, ध्यान से सुनना, मैं जब इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, याद रखना ये जो यहाँ पे आपको साइन दिख रहा है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट नहीं है। ये कौन सा डॉट है? कैन एनीबॉडी टेल मी? जो मैंने डॉट दोनों के बीच में डाला है, दिस इज व्हाट? दिस इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन डॉट और इज इट डॉट प्रोडक्ट? इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है बिकॉज इस डॉट के दोनों साइड में क्या है? वेक्टर्स हैं। सो इट इज डॉट प्रोडक्ट, राइट? सो इफ दिस इज डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, सो इफ दिस इज डॉट प्रोडक्ट, everyone please, I want your complete attention, rapt attention here please। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होगा, सुनना ध्यान से। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाऊंगा, ax i कैप के साथ पूरा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा, हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि i डॉट j and i डॉट k will be 0, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k will be 1। let's keep that into consideration। तो मैं ये पहला वाला टर्म आपको डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा के दिखा रहा हूँ। इसका मैंने ax i कैप सिलेक्ट किया और ये पूरा ब्रैकेट सिलेक्ट किया। तो मैं इसको करके आपको दिखा रहा हूँ ax i कैप, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा रहा हूँ मैं, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ध्यान से देखिएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी i डॉट i, देखिए ax bx i डॉट i आया प्लस ax by i डॉट j आया प्लस ax bz i डॉट k आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो i डॉट j और i डॉट k ये तो 0 है, हमने अभी पढ़ा था। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आया वो आया ax bx इंटू i डॉट i, और i डॉट i तो 1 होता है। इसका मतलब जब हमने पहला टर्म ax i लिया और बाकी पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मेरे को रिजल्ट मिला पहला टर्म के मल्टीप्लाई से ax bx। क्या मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली कैन आई से दैट दूसरे टर्म के मल्टीप्लिकेशन से ay by आएगा और तीसरे टर्म के मल्टीप्लिकेशन से az bz आएगा। Therefore similarly I can write out other terms, therefore
हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोल सकते हैं। इसकी रिजल्ट जो आएगी वो आएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्या मेरी बात समझ आई है? दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जो आपको याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब आपको एक बात भी समझ में आ रही है कि यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड, these are what? These are numbers. These are numbers. ये मैग्नीट्यूड वाले कुछ नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं ये, and they may come with sign or may not come with sign, but generally they will come with sign when we are dealing with physical vectors, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो फिजिक्स के साथ लिंक्ड है। क्योंकि देखो, आप जब दो वेक्टर लोगे, सब आप वेलोसिटी वेक्टर लिए, तो वेलोसिटी वेक्टर जब आप लोगे तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ax की यूनिट होनी चाहिए भाई, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड आई कैप, 7 मीटर पर सेकंड आई कैप, -2 मीटर पर सेकंड आई कैप, तो ax की यूनिट होगी। लेकिन जब आप मैथ्स करोगे ना, आप में से कुछ लोगों का मैथ्स होगा, मैथ्स में जब वो वेक्टर करोगे तो ये ax ay az और bx by bz इसमें यूनिट नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब आप फिजिक्स के साथ करोगे तो आपको हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर, आप हमेशा ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर्स हैं उनके साथ डील करोगे, और फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसकी यूनिट होना लाजमी है। इट हैज टू बी देयर, विदाउट दैट इट विल नॉट वर्क। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ax bx plus ay by plus az bz. Let's try to take one example so that you can understand it. Let's take one example. Suppose I give you one vector as a vector and it is equal to 2i cap plus 3j cap, and suppose I take another vector b vector which is equal to 3i minus 4j cap, and if I ask you, tell me the angle between a vector and b vector, what would you do? What would you do? It will be, what will be the angle between a vector and b vector? तो हमने अभी पढ़ा था a vector dot b vector is equal to a into b into cos theta। तो अभी हमने देखा था कि जो cos theta है it will be a vector dot b vector upon ab। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i plus 3j into 3i minus 4j। तो हम इसको डायरेक्ट अभी कर सकते हैं जो हमने अभी सीखा। क्या ऊपर a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा क्या वो आ जाएगा 2 into 3, सब लोग बोलना आपको समझ में आया है कि नहीं, माइनस 3 into 4 अभी किया ना आपने, डिवाइडेड बाय ए बी। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी का मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डाला है, ये मल्टीप्लीकेशन कौन सा मल्टीप्लीकेशन है? नॉर्मल या क्रॉस प्रोडक्ट? नॉर्मल या क्रॉस प्रोडक्ट? जल्दी बोलो, तुम बता सकते हो, नॉर्मल या क्रॉस प्रोडक्ट? इट इज नॉर्मल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 6 minus 12 is minus 6 upon 9 plus 4 is root 13 and 3 square plus 4 square is 16 plus 9 25। तो ये अंदर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5। तो आपकी आंसर आएगी -6 by 5 root 13। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विच इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो डॉट प्रोडक्ट का सबसे मेजर एप्लीकेशन क्या है? डॉट प्रोडक्ट का सबसे मेजर एप्लीकेशन है कि वो मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल दे देगा। किसका एंगल दे देगा? दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब सवाल क्या आता है, सुनो, अगर मैं दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो होगा इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। जीरो मतलब हम ये बोलेंगे कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई है? सपोज मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू बोल रहा हूँ जीरो है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। एंड आई एम आल्सो सेइंग दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर नॉन जीरो वेक्टर्स। सपोज आई से दैट, मैं आपको बोल देता हूँ ये ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जीरो अगर आ रही है तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अच्छा, अब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कैसा एंगल है बेटा? कोई बताएगा? इट इज एक्यूट एंगल। इट इज एक्यूट एंगल। आप कास्ट याद करो, आपको कास्ट सिखाया गया है। इज इट एक्यूट एंगल? CAST, ऑल साइन टेन कॉस। आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई है। प्लीज प्लीज रेस्पॉन्ड। ठीक है, कुछ चीजें मैं बोलता चलूंगा, आपको अपने बेसिक नॉलेज से इसको आंसर करना है। ऑल्दो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई है, आप अपने बेसिक नॉलेज से इस बात को बता सकते हो, राइट? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच
बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहे हो। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। सो from the sign of a vector dot b vector we can tell a lot about the nature, means not nature, we can tell about कि what is the angle between those two vectors। और याद रखिए ये जो दो वेक्टर के बीच का मैं एंगल बोल रहा हूँ, अब हमेशा याद रखें कि आपको हमेशा ऐसे वेक्टर्स दे दिए जाएं जो कि टेल टू टेल रखे हुए हो या हेड टू हेड रखे हुए, ये जरूरी नहीं है। आपको अलाउबल मूवमेंट्स करनी है एंड देन यू हैव टू फाइंड इट आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, या फिर उल्टा चलो, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, मैथमेटिकली कर लो और cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो आपको ऑटोमेटिकली उनके बीच का एंगल मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या क्लैरिटी है? ये दिस इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दिस इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ dot product. It gives you what? There is one question from, just a moment, Pooja, you are having a question, just a moment. Yes Pooja, tell me, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आपका क्या सवाल है, बोलिए। पूजा टेल मी, आपने हाथ उठाया है? नो सर, इट्स क्लियर। ओके फाइन। देखिए आपको कुछ डाउट होगा बट डोंट वरी, आप पहले वीडियोस देख लें और उसके बाद अपने डाउट्स रेज कर सकते हो पर्सनली, कोई इशू नहीं है, मैं डाउट सेशंस भी रखता हूँ, ठीक है ना? या ओके सर। ओके चलो ध्यान सुनना अभी। सो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। ओके फाइन, आइए मिलके करते हैं साथ साथ। आइए देखिए ध्यान से। तो हमें ये बात समझ में आई कि डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, क्या नहीं है, राइट, वी अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, अब क्या सवाल है, जब आपको ये डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया है तो अब सवाल ये आता है कि सपोज ध्यान सुनना, सपोज मैं आपको बोलता हूं कि सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये ए वेक्टर में यही वाला वेक्टर ले रहा हूं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और एक वेक्टर है बी वेक्टर विच इज 3i minus 4j, एंड सपोज द बी वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आई एम आस्किंग यू, क्वेश्चन सुनना, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द component vector of a vector along b vector। सवाल सुनना, सवाल बहुत अच्छा है और ये बेसिक आपको अभी क्लियर करना है। What is the component vector of a vector along b vector? और मान लो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और आपने ऑलरेडी वो cos थीटा निकाल लिया है, इट इज इक्वल टू -6/5√13। मेघराज, so मेघराज is saying that it is equal to a cos theta, good, but मेघराज यहाँ पे मेरा एक सवाल है बेटा जी आपसे, ये जो a cos थीटा है, ध्यान सुनना, गुड, many people are answering it good, आपने a वेक्टर के हेड से b वेक्टर के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, आपने खींच दिया, खींचने के बाद आप इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग b वेक्टर जो होगा वो ये वाला लेंथ होगा, and that will be equal to a cos theta। ये आपको समझ में आ गया, that is equal to a cos theta। I hope you all understanding this, that is equal to a cos theta। क्या क्लैरिटी है? ये a cos theta है ये, लेकिन ये a cos theta आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है बेटा जी। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a वेक्टर along b वेक्टर? याद रखिए, इट इज द कंपोनेंट वेक्टर। सो व्हेन आई से कंपोनेंट वेक्टर, आई कैप गलत होगा मेघराज, आई कैप गलत होगा मेघराज, क्योंकि ये बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, आपको कैसे पता चला कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है? प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग यू, आपको किसने बताया कि ये बी वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है? इट इज ए कॉस थीटा बी कैप। वेरी गुड प्रणीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इट इज ए कॉस थीटा बी कैप, बहुत ही शानदार, मजा आ गया भाई। इट इज ए cos थीटा बी कैप। तो जो अगर मैं कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर बोलूं, ध्यान सुनना, तो कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज ए cos थीटा इनटू बी कैप। क्या मेरी बात समझ में आई है?
a cos थीटा इंटू बी कैप। अब a cos थीटा कैसे निकालोगे? आपको a की वैल्यू पता है, a is the magnitude of a vector which is equal to under root of 13 into cos theta is, you got it, minus 6 by 5 root 13 एंड बी कैप निकालने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है। बी कैप निकालने का तरीका क्या है? इज इट बी वेक्टर अपॉन बी? क्या मैंने आपको ये सिखाया है? तो बी वेक्टर कितना है? क्या बी वेक्टर है 3i माइनस 4j अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज रूट 25। क्या चमका है? अब ध्यान से देखो, रूट 13 ने रूट 13 को मार दिया तो ये कितना आया? माइनस 6 बाई रूट 25 इज 5, तो माइनस 6 बाई 25 इंटू 3i माइनस 4j। ये आपका आंसर है जो आपको अभी मिला। दिस इज द कॉम्पोनेंट वेक्टर। क्या समझ में आया है? दिस इज द कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर along b vector। क्या मेरी बात समझ में आई है? which is minus 6 by 25 3i minus 4j। क्या everybody is understanding this? क्या everybody is understanding this? Everybody is with me? Any doubts? Any doubts still here? कोई भी डाउट यहाँ तक? क्या क्लैरिटी है? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। So I hope you understood this. This is important and you need to understand it very well. चलो चलो, so we are having still 5-6 minutes more left, so we can move ahead clearly, right? सर अंडर रूट 25 is 5। हाँ वही किया मैंने। अगर तुम देखोगे अंडर रूट 25 को 5 किया तो नीचे 25 ही आ गया ना, बिकॉज 5 रूट 13 था ना। हाउ टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स? सो आई टोल्ड यू यस्टरडे ना, हाउ टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। आपको वेक्टर को आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अगर आप उसको आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखोगे तो फिर आप सिंपली उन वेक्टर्स को ऐड कर दो। अगर आपके वेक्टर्स आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखे हुए हैं तो सिंपली ऐड कर दो सबको। मतलब अभी एक सवाल आया कि सर देखो लॉजिकली ये सब सवाल अच्छा है कि आप पूछ रहे हो, गुड दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, दिस वुड हेल्प यू अ लॉट। सपोज किसी ने सवाल पूछा कि सर हाउ टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। तो मेरा इसमें सवाल होगा कि 95% से ज्यादा केसेस में आपको वेक्टर्स जो प्रोवाइडेड होंगे, वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में प्रोवाइडेड होंगे, दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द कंपोनेंट फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर प्रोवाइडेड होंगे, ध्यान से सुनना, अगर कंपोनेंट फॉर्म में आपको प्रोवाइडेड होंगे 95% ऑफ द टाइम वेक्टर्स, तो सपोज इफ आई एम टेलिंग यू देयर इज वन वेक्टर ए वेक्टर which is equal to 2i cap plus 3j cap, एक दूसरा वेक्टर है which is 3i cap minus 5j cap, एक तीसरा वेक्टर है which is 4j cap minus 5i cap, एक b वेक्टर है which is 2i cap only suppose, and we have to add all of them. Is it a difficult task for us to add all of them? We will simply add all these vectors, i के सारे कोफिशिएंट जोड़ देंगे और j के सारे कोफिशिएंट जोड़ देंगे। सिमिलरली अगर k का कोफिशिएंट हुआ तो वो भी जोड़ देंगे अगर प्रेजेंट हुआ तो i के सारे कोफिशिएंट जोड़ेंगे तो i कैप प्लस j कैप डालेंगे। i कैप बोलो कितना कितना आएगा? 2 3 5 5 माइनस 5 0 प्लस 2 2i होगा। j कैप के सारे कोफिशिएंट जोड़ो 3 प्लस 4 7 7 माइनस 5 2 2i plus 2j cap is your final vector which is the addition of all these vectors। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? So this is the way in which you have to add for most of your engagement in physics. You have to add the vectors like this only 99% of the times. और कभी-कभी आपको अगर सवाल आ जाए कि जब आपको दिख रहा है कि वो वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, एंगल बीच का दिया हुआ है, तो आपके लिए ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है? आपको ऐड करने का सिंपल तरीका है जो मैंने आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिखाया था। मतलब XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ले और उन सबके कंपोनेंट्स ले लें और फिर जोड़ें। कल बताया था ना मैंने आपको, याद है आपको? क्या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तुम लोग? कल की बात है, याद है ना? मैंने XY एक्सिस बनाया था, एक वेक्टर इधर लिया था, एक वेक्टर इधर लिया था, एक वेक्टर इधर नीचे की तरफ लिया था, सबको जोड़ा था, एंगल प्रोवाइडेड था, याद है?
तो उस तरीके से करेंगे हम, तो क्या खास बात है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। कैन वी मल्टीप्लाई मोर देन 2 वेक्टर्स बाय डॉट प्रोडक्ट? ओके, फॉर डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वी नीड ओनली 2 वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ हम 2 वेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 वेक्टर को अप्लाई करने के बाद अब देखो, ध्यान सुनो, यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा इसके लिए आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। आइए इस चीज को डील कर लेते हैं। तो कल का भी सेशन हमारा जाएगा इसमें, और वो होगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट दैट विल बी डीलिंग। सुनिए ध्यान से, जब हम 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वी आर गेटिंग ए, वी आर गेटिंग बी एंड वी आर गेटिंग cos थीटा। समझने वाली बात यह है कि ये ए बी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एंड cos थीटा इट इज आल्सो अ नंबर, इट इज अ प्लेन नंबर, एंड ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स, दे आर मैग्नीट्यूड्स, दे मे बी हैविंग साइन बट दे आर मैग्नीट्यूड। तो magnitude plus they may be having, they may be units, sorry not sign, they may be having units, and they may be having units, but a magnitude plus unit, b magnitude plus unit, मतलब they will be generally scalar। तो आप जब देखोगे, जब आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो ना 2 वेक्टर का, तो राइट हैंड साइड वाली जो चीज आ रही है ना आपकी ए बी cos थीटा, ये जो है ना ये एक स्केलर आएगी, स्केलर। that is why a vector dot b vector dot product, it is also known as scalar product। When I say it is scalar product, it means the output of a, ध्यान से सुनना, ये अपने कॉपी में लिखना है, output of a dot product is a scalar quantity। Output of a dot product is a scalar quantity, you need to understand this। डॉट प्रोडक्ट का जो आउटपुट है ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर नहीं होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बोला कि सर क्या मैं ऐसे बहुत सारे डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ क्या? अब समझ में ये आना चाहिए आपको कि अगर आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, इसके अंदर ये सब डॉट प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो आपको एक स्केलर मिलेगा, आप सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो आपको एक और स्केलर मिलेगा, और फिर स्केलर डॉट स्केलर का कोई मतलब नहीं होता है, स्केलर डॉट स्केलर का कोई मतलब नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, डज नॉट हैव एनी मीनिंग। अरे चमका क्या? It does not have any meaning, yes or no? It does not have any meaning। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर इसकी कोई मीनिंग नहीं है तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा नंबर 10 वेक्टर ले लिया, सर 10 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा बोलो? पता नहीं भाई, 10 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप कर ही नहीं सकते। डॉट प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल, उसका फॉर्मूला देखो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्योंकि 2 वेक्टर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो आपको एक स्केलर मिलेगा, और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट फिर से आप एक वेक्टर के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक स्केलर बन गया है। क्या मेरी बात समझ में आई है? फिर वो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो बहुत सारे वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट हम नहीं कर सकते। क्या क्लैरिटी है? आई होप यू गॉट दिस। 100% क्लैरिटी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखो, देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो, अभी जाते जाते लास्ट 5 मिनट और खींच रहा हूँ, ठीक है? घबराना नहीं। सपोज मैं आपको बोलूं देयर आर 2 वेक्टर्स, a vector and b vector। a vector suppose it is given by 2i plus 3j cap, and b vector suppose it is given by 3i cap plus 4j cap। suppose I give you these 2 vectors, ठीक है? I suppose if I ask you what is the component of a vector along b vector and दूसरा perpendicular to b vector। बहुत आता है काम ये चीज, तो आपको समझना पड़ेगा। along b vector हम ऑलरेडी अभी कर चुके थे, perpendicular to b vector हमें देखना है। तो चलो मिलके करते हैं। along b vector के लिए सबसे पहले मुझे इन 2 वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ताकि मैं इनके बीच का एंगल निकाल सकूं। तो कितना आ जाएगा बोलो? कितना आ जाएगा बोलो? देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते। ये देखो, ये मेरा ए वेक्टर है, ओके? जस्ट वेट, ये ए वेक्टर है और ये मान लो मेरा बी वेक्टर, ठीक है? इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, जो हम cos थीटा से निकाल लेंगे।
बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और अक्ल लगाओ। अगर आप बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के हेड से सॉरी आप अगर बी वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो आपको पता है कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ आएगी ए cos थीटा, लेंथ की बात कर रहे हैं। और आपकी ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर हो जाएगा ए cos थीटा इनटू बी कैप। अभी अभी अब भी हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में। ये सबको क्लियर है? ए cos थीटा इनटू बी कैप। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? ए cos थीटा इनटू बी कैप। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए cos थीटा इनटू बी कैप को ध्यान से सुनना। ए cos थीटा इनटू बी कैप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी कैप। नहीं आया। ए cos थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी कैप, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आपको बोलना है, हो सकता है कि मैंने ये गलत लिखा हो, आपको बोलना है क्या ये सही है? आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है? एक बार करके बताओ तो क्या ये सही है? इसीलिए मैं बार बार आपसे क्या ये सही है? ए वेक्टर डॉट बी कैप, क्या मैं ए cos थीटा बी कैप को ए वेक्टर डॉट बी कैप लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ संपन्न? सोच के बोल बेटा। ये देख, ये देख जसराज, नो वी कैन नॉट राइट। गुड। ए वेक्टर डॉट बी कैप अगर तू करेगा इट विल बी ए इनटू बी कैप का मॉड्यूलस जो है वो 1 आता है इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी कैप व्हिच इज थीटा। तो आपका रिजल्ट आएगा ए cos थीटा। क्या बात समझ आई है? तो ए वेक्टर डॉट बी कैप करना गलत होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? A vector dot b cap gives you what? It gives you a cos theta. It gives you what? It gives you a cos theta. तो आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा? आपको इसको अरेंज करके थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। टाइम थोड़ा एक्चुअली ज्यादा हो गया है, तो आई वुड लव टू स्टॉप हियर ओनली। हर्ष इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ हर्ष बोलो, मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है, बोलो बोलो हर्ष, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। ए cos थीटा और ए वेक्टर इक्वल है क्या? तुम्हारी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा माइक को अपने मुंह के पास रखो और बोलो। ए cos थीटा और हाँ। ए वेक्टर इक्वल है क्या? ए cos थीटा और ए वेक्टर इक्वल है? नहीं, ए वेक्टर ए cos थीटा के कैसे बराबर आ सकता है? और आपने किया है इधर वो नीचे वो ट्रायंगल वो नहीं 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 वेक्टर। नहीं, मैंने क्या बोला है, ध्यान सुनो, कंफ्यूज मत हो। देखो अपना हाथ नीचे कर लो, मैं आंसर कर रहा हूँ तुम्हें। देखो ध्यान से, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए cos थीटा जो है, ध्यान से सुनना, ए cos थीटा जो है, ए cos थीटा है ए वेक्टर का कंपोनेंट, ए वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ध्यान से सुनना, मैं इसको लिख के देता हूँ हिंदी में। ए वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए cos थीटा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं ए वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर बोलो अलोंग बी वेक्टर, तो वो हो जाएगा जो तुम ए वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग बी वेक्टर निकाल रहे हो वो, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? बी कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे एंड करूंगा। हर्ष इसको ध्यान से देखना, हम लोग कल इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है? ठीक है।